हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रिंट स्टडी चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंजंक्शन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 which is in our syllabus of CPC, that is Code of Civil Procedure. Rahul from Law Faculty of Delhi University, second year student. As you know, exam schedule has been declared for the law student of Faculty of Law, which is scheduled in January 2022. Not 2022, it's 2023. So for that we have to prepare well. Regarding your preparation, I will cover in this video injunction. What is the provision of injunction? On which ground you can avail the injunction against opposite party? And what is the case law related to the injunction? So all things will be covered in this video. In the next video, we will cover the interlocutory orders. So let's start. The term injunction. As you know, the term injunction is not defined under the CPC. Here some provisions are given in the order 39, rule 1 to 5, which is related to the injunction. Let's come to the meaning of injunction. What is the meaning of injunction actually mean? So I have made a note for the temporary injunction. So the literal meaning of injunction is restraining or preventing a person from commencing or continuing action. So इसका literally mean ये होता है कि to prevent a person which are doing wrong in the opinion of the court from commencing or continuing that action. So what is the object of the injunction? Primary object of the injunction is the preservation of property in dispute till the rights of the parties are completely adjudicated. Second, the underlying object of the granting injunction is to maintain and preserve a status quo. These are the two prime objects of the injunction. So, in the view of law, in the eye of law, the meaning of injunction is a judicial process whereby a party is required to do or to refrain from doing any specific act. It is a remedy in the form of an order of the court addressed to a particular person that either prohibits from doing or continuing to a particular act, which is known as prohibitory injunction, or order by the court him to carry out a certain act, which is known as a mandatory injunction, which is mentioned in section 38 to 42 of the specific act, specific relief act 1963. It is act in personam, not in re. Okay. So come to the types of injunction. We understand the meaning and judicial meaning of the injunction. Okay. Injunction types. On the basis of nature, there are two types of injunction. First, prohibitory injunction, and second, mandatory injunction. It's also known as. Okay. Let's come to the prohibitory injunction. Prohibitory injunction means it forbids the person from doing a particular or a specific act. Second one is mandatory injunction. It compels, commands, or orders a person to do something. Okay. Next है on the basis of view of duration. There are two types of injunction. One is permanent injunction and perpetual injunction. Second is temporary injunction. Okay.
or interim injunction. The first one is permanent injunction, also known as perpetuity injunction. It restrains a party forever. It means हमेशा के लिए. It restrains a party from doing a specific act and can be granted on merit at the conclusion of trial after hearing the parties. तो दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा, एक्सपार्टे भी लगेगी. इन दैट केस आई विल कवर किस केस में एक्सपार्टे इंटरिम इंजंक्शन भी दिया जा सकता है अगर अपोजिट पार्टी प्रेजेंट नहीं होता है. तो जो ये परमानेंट इंजंक्शन है वो फॉर एवर पार्टी को फ्रॉम डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेंट कर देता है. ठीक है. इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 38 to 42 of Specific Relief Act 1963. Okay. So for the in details, you can refer those section which is 38 to 42 of Specific Relief Act 1963. Let's come to the temporary injunction which is in our syllabus of CPC, that is Code of Civil Procedure. Okay, we'll cover the provision where the mention of the injunction and on which ground a court can avail the injunction against opposite party. We will cover also case laws. To keep watching and be with me. In temporary injunction or interim injunction, it restrains a party temporarily, the word temporarily, from doing the specific act and can be granted only until the suit for further orders of the court. Okay. It contains in Order 39 from Rule 1 to 5 regarding temporary injunction. We will come on that provision. Section 36 and 37 of the Specific Relief Act 1963 deals with the temporary injunction. So you can refer those sections also for the detailed meaning of temporary injunction. Section 37 and 36 of Specific Relief Act 1963 आप नोट भी कर सकते हो. Okay, next. The main crux आता है कि who can apply for the injunction. So either party, that means either plaintiff or defendant, can approach the court to avail temporary injunction. It depends upon the court, it will be granted or not. It will depends upon your plant circumstances of disputes. Okay. The relief can be granted only if justice, equity and good consciousness so required. So let's come to the provision which is related to the temporary injunction which is mentioned in Order 39 from Rule 1 to 5. What is saying? Order 39 says temporary injunction and interlocutory order. In next video we will cover interlocutory order. In this video we will just cover temporary injunction. Order 39 Rule 1 saying that the marginal head of Rule 1 of Order 39 cases in which temporary injunction may be granted. So यह एक ground है. Some grounds are given. हालांकि जो ग्राउंड्स है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक ग्राउंड्स इंटरटेन किया जाता है इन केस ऑफ इंजंक्शन जनरली. दैट्स व्हाई मेंशन इन आवर सीपीसी. एक केस के माध्यम से हम जानेंगे क्या कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर भी है कि वो इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है कि नहीं. ठीक है, केस के माध्यम से हम जानेंगे. उसमें कुछ और ग्राउंड्स भी मेंशन किया गया है. तो ऑर्डर 39 रूल 1 कहता है केसेस इन व्हिच टेम्पोररी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड वेयर इन एनी सूट इट इज प्रोवाइडेड बाय एफिडेविट और अदरवाइज. ठीक है, अदरवाइज बाय एप्लीकेशन आल्सो दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, ऐसा प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है इन ए सूट, ठीक है, इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड or damaged or alienated by any party, किसी पार्टी के द्वारा, जहां पे एनी पार्टी है इसी से हमें मालूम चलता है either defendant or plaintiff can
approach the court to grant injunction. Okay, alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree, या तो किसी पार्टी के द्वारा डेंजर किया गया हो, या फिर जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है वो वेस्ट हो रहा है या फिर एलिनेटेड हो रहा है by either by any party or wrongfully sold हो रहा है. In that case, concerned party has remedy to approach the court for granting injunction to prevent that action or such act, specific act against the opposite party. Okay. Second है that the defendant threatens, अगर डिफेंडेंट है वो थ्रेटन कर रहा है और इंटेंस और टू रिमूव डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इज यहाँ पे आप है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है और रिमूव करना चाहता है और थ्रेटन कर रहा है विथ व्यू डिफ्रॉड करने के लिए, तो इन दैट केस कोर्ट विल इशू द इंजंक्शन अगेंस्ट यू. थर्ड है that the defendant threatens to dispose the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. यहाँ पे क्या है, डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है प्लेंटिफ को तो डिस्पोज करने के लिए द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजुरी, और उसके बाद इंजुरी हो जाता है प्लेंटिफ को रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी के संबंध में जो कि डिस्प्यूट है सूट में, तब भी इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है अगेंस्ट यू. यहाँ पर यू डिपेंडेंट मानकर चलना है इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा है, तो उस माध्यम से आप समझ सकते हैं. ठीक है, द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट एंड टेम्पोररी इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट आइदर थ्रेटन्स, डिफ्रॉडिंग, वेस्टेड, डैमेज, ये सारे जो एक्ट हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट में इम्पोज द इंजंक्शन अगेंस्ट यू और मेक सच ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग और प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग. द वर्ड यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं क्या क्या मेंशन है. वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलिनिएशन, sale, removal, disposition of the property or disposition of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in the suit, dispute in the suit. In that case, court may impose the injunction against you. यहाँ से आपको क्लियर हो जा रहा है जो भी क्लॉज दिया गया है ए बी सी टू द रूल 1 ऑफ द ऑर्डर 39 क्या क्या है वो ग्राउंड पहला है वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलिनिएशन, सेल, रिमूवल, डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, ये सारा ग्राउंड है, और डिस्पोजिशन ऑफ द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉजिंग इंजुरी, यहाँ पर इंजुरी हो रहा है प्लेंटिफ को रिलेशन टू द प्रॉपर्टी in the dispute of the suit, then court thinks speed until the disposal of the suit or until further orders may grant the temporary injunction. ठीक है, these are the grounds mentioned in the uh, code of civil procedure under rule 39 from rule 1 to 2 एक ग्राउंड बताता है. आज हालांकि ये ग्राउंड एग्जॉस्टिव नहीं है, मीनिंग देयर बाय यह लिमिटेड नहीं है कि इतना ही ग्राउंड होना चाहिए टेम्पोररी इंजेक्शन ग्रांट करने के लिए, इसके अलावा भी ग्राउंड हो सकता है, वो एक केस के माध्यम से मैंने बताया था कि समझेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है एक अनदर ग्राउंड जो रूल 2 में मेंशन है टू द ऑर्डर 39 दैट इज टेम्पोररी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर. वो क्या कहता है, द मार्जिनल हेड ऑफ ऑर्डर 39 रूल 2 की इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच. यहाँ ब्रीच को लेकर यह एक ग्राउंड बनाया गया है टेम्पोररी इंजेक्शन ग्रांट करने के लिए. इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर मान लीजिए हम राहुल हो गए, ठीक है, आप मान लीजिए रोहित या रितेश या गौरव कुछ भी, अपना जो आपका नाम है लेट्स आप डिफेंडेंट है, हम प्लेंटी पे समझने के लिए बता रहे हैं, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, बट आप
कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का तो ठीक है। और अदर इंजुरी ऑफ काइंड्स, कोई भी इंजुरी जो प्लेंटिव को हो रहा है यानी कि मुझे, तो वेदर compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may at any time, इसमें ये मेंशन है कि आप चाहे तो कंप्लेंसेशन लिया हो या नहीं लिया हो, बट आपके पास रिमेडी है कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर द कोर्ट एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट। सूट को कमेंसमेंट होने के बाद आपके पास रिमेडी है कि आइदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट, आइदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए टेम्पोररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और injury complaint of or any breach of contract injury of the like kind arising out of the same contract or relating to the same property। ठीक है, तो सेकेंड जो रूल है उसमें यही है, रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ब्रीच हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अग्रीड पार्टी के पास रेमेडी है कि कोर्ट के अप्रोच कर सकता है। इसमें whether the conversation has been taken or not ये नेसेसरी नहीं है। आफ्टर द जजमेंट और बिफोर जजमेंट आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कमिटमेंट कोर्ट को, जो जुडिक्शन में है कि टेम्पोररी इंजेक्शन इम्पोज करने के लिए। ठीक है, of the contract in of like kinds in rising out of the same contract relation to the same property, उस same property relation में राइट, ठीक है, कोर्ट एज थिंक फिट ग्रांट कर सकता है इंजेक्शन। तो रूल 1 एंड रूल 2 में मेनली ये जो 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, 3 क्लॉज ऑफ रूल 1 एंड 1 क्लॉज ऑफ रूल 2, सम ग्राफ्स। ओके, लेट्स read the rule 2 sub clause rule 2। The court may by order grant such injunction on such term as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security or otherwise as a court। Okay, let's come to the rule 2 capital A, to the order 39, consequences of disobedience or breach of injunction। अगर इंजेक्शन ग्रांट हो गया है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे हो, उसको डिसओबे कर रहे हो, इन दैट केस कोर्ट में इम्पोज पेनल्टी अगेंस्ट यू। तो क्या क्या है, in the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the court may grant the injunction or making the order or any court to which the suit or proceeding transferred may order the property of the person guilty of such disobedience or property to the attach। आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर किया जा सकता है, एंड मे ऑल्सो सच पर्सन टू बी डिटेन इन सिविल प्रिजन अप टू 3 मंथ के लिए आपको डिटेन भी किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच भी की जा सकती है अगर आप डिसोबे कर रहे हो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट related to the property dispute in the suit। Okay, for a term not exceeding 3 months unless the meantime the court directs his release। Okay, 3 मंथ के लिए आपको सिविल इम्प्रिजमेंट इंप्रिजन भी मिल सकता है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है आपने जो रिटेन करा है, बुपाई करा है, एक्वायर करा है, अगेंस्ट में आपका इंजेक्शन ग्रांट हुआ है, तो आपका प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है। आगे दिया गया है सब रूल 2 में कि नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से ज्यादा नहीं होगा अटैचमेंट आपकी प्रॉपर्टी का। एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसोबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यू, अगर आप फिर भी आप डिसोबे कर रहे हो, ब्रीच को कंटिन्यू कर रहे हो, देन आपकी प्रॉपर्टी अटैच जो हुई थी सोल्ड आउट हो जाएगी और
उसके जो सोल्ड आउट होने के बाद जो अवार्ड मिलेगा एग्रीड पार्टी को कंपनसेशन के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, आउट ऑफ द प्रोसीड the court may award such compensation as think fit to the injured party, and a plaintiff shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto. Okay? Next रूल है 3, वो एक्सपार्टी जिसको बोल सकते हैं, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, the court shall in all cases except it appears that object of granting injunction would be defeated। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस एक्सेप्ट where it appears that object of granting injunction would be defeated by the delay before granting injunction direct notice of the application for the same to the given to the opposite party। अगर जो ग्रांटिंग करना है एप्लीकेशन, एक प्रिंसिपल है कि दोनों पार्टी को सुनना चाहिए एक जजमेंट देने के लिए, वही प्रिंसिपल को लेकर ये लाइन मेंशन किया गया है, द कोर्ट सेड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रांटिंग द injunction would be defeated by the delay before granting injunction direct notice of the application for the same to given the opposite party against whom the suit has been filed for the granting temporary injunction की notice provided that where it is disposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reason for its opinion that the object of granting injunction would be defeated by the delay and a required certificate। जनरल रूल है ये है कि अगर आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है रिगार्डिंग टेम्पोररी इंजंक्शन, तो आपको एक नोटिस भेजनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर देगी प्लेंटिफ को आप नोटिस दो, या तो कोर्ट भेजेगी। अगर प्लेंटिफ को ये बताया जाएगा, यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक्स पार्टी अगर टेम्पोररी ग्रांट हो जाएगी तो प्लेंटिफ को सेम डे जिस दिन ये इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट हुआ है या फिर फॉलोइंग दैट डे नेक्स्ट डे आपको एक नोटिस दिया जाएगा, या फिर वो डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पास भेजा जाएगा। आगे देखते हैं, पहले तो कोर्ट नोटिस भेजेगी। ठीक है, अगर ये देखती है कि डिले हो जा रहा है तो एक्स पार्टी इंजेक्शन ग्रांट भी हो जाएगा। अगर ग्रांट होने के बाद अब एप्लीकेंट को कुछ डॉक्यूमेंट कुछ एफिडेविट भेजा जाता है एप्लीकेंट के द्वारा टू द यू। ठीक है, तो क्या है, and require the applicant to deliver to the opposite party or to send to him by registered post copy of application for injection together। वो इंजेक्शन का जो ग्रांट हुआ था उसका कॉपी है टुगेदर, उसके साथ और क्या क्या है, ए कॉपी ऑफ एफिडेविट फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ए कॉपी ऑफ द प्लेंट and copies of the documents on which the applicant relies। So these are the documents will be sent to you together injection copy। Okay, to file or the day on which the such injection is granted or the day immediately after that day, an affidavit stating that the copies aforesaid have been delivered or sent to you। Okay, next है रूल 3 कैपिटल ए, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजेक्शन विद इन 30 डेज। उसके बाद 30 डेज के अंदर कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइनलिटी देनी पड़ेगी रिगार्डिंग द इंजेक्शन आफ्टर ग्रांटिंग इंजेक्शन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, वेयर एन इंजेक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। यहाँ पर क्या है, अगर अपोजिट पार्टी को नोटिस बिना दिए गए अगर इंजेक्शन ग्रांट हो जाता है, द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू पेनल्टी डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन। कोर्ट को ये जो है पेनल्टी देना पड़ेगा डिस्पोज द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। रूल है फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द इंजेक्शन वाज ग्रांटेड, जिस दिन इंजेक्शन ग्रांट हुआ था उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर
कोर्ट को फाइनलिटी देना पड़ेगा अगर विदाउट नोटिस इंजेक्शन ग्रांट हुआ है तो, ठीक है। was granted and where it is unable to do so, अगर यह नहीं हो कर पाते हैं कोर्ट, for the cause being it is shall be record its reason for such inability, आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दो क्लोज में यहाँ पर रिकॉर्ड करने की बात किया जा रहा है। जो रूल है अगर रूल फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो आपको कोर्ट को रिकॉर्ड भी रीजन करना पड़ेगा फॉर द जस्टिस। ओके, नेक्स्ट है रूल 4, उसमें कुछ रिमेडी का बात किया जाता है। अब किसको रिमेडी का, डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम द इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड। ओके, तो क्या है आगे देखते हैं। ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वैलिड और सेटिस्फाइड, रिमेडी के रूप में जो इंजेक्शन ग्रांट हुआ है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है और सेट असाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, एनी ऑर्डर फॉर द एन इंजेक्शन मे बी डिस्चार्ज और वैलिड और सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी डिससैटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। अगर अगेंस्ट हुम लाइक यू इंजेक्शन हमने ग्रांट करवा दिया कोर्ट को अप्रोच करके, आप अगर उससे डिससेटिस्फाइड हैं तो आपके पास रिमेडी है कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पोररी इंजेक्शन और एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन ए पार्टी हैज नोइंगली, यहाँ पर प्लेंटिफ का क्या दिया जा रहा है, फॉल्ट क्या है, उस बेसिस पर आप चाहो तो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि हम डिससेटिस्फाइड हैं और वांटिंग क्या होगा, आप चाहो तो अपना इंट्रीम जो इंजेक्शन है अगेंस्ट की आपके अगेंस्ट में पास हुआ है, ठीक है, तो उसको सेट असाइड करा सकते हो, डिस्चार्ज करवा सकते हो, कुछ चेंज करवा सकते हो। क्या है, अगर प्लेंटिव नोइंगली मेड ए फॉल्स or misleading statement in relation to a material particular, the injunction was granted without giving notice to you, the opposite party, that is opposite party, the court shall vacate the injunction unless, क्या है, for reasons to be requited it considered that it is not necessary so to do in the interest of justice। और कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो उसके लिए रीजन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं तो आपकी जो इंजेक्शन जो है अगेंस्ट यू जो ग्रांट हुआ है, हमने कोर्ट को अप्रोच किया था तो कोर्ट इंजेक्शन को वेकेट कर देगी। ठीक है, provided further that wherein an order of injunction has been passed after giving to the party an opportunity of being heard, अगर दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिला है सुनने के लिए, केस को समझने के लिए, अपना आर्गुमेंट रखने के लिए, then in that case being heard the order shall not be discharged, varied, set aside an application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by the discharge in the circumstances or unless the court is satisfied that the order has caused undue hardship to the party। इसमें रूल ये है और दोनों पार्टी ने केस कोर्ट में अपीयर हुए हैं, दोनों पार्टी को सुना गया है, देन इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट हुआ है, फिर भी कोर्ट चाहे जो जिसके अगेंस्ट में ग्रांट हुआ है उसके पास लगता है कि नहीं डिससेटिस्फाइड है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो रूल ये है कि वो उस केस में दोनों पार्टी सुना है तब जाके इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट हुआ है, उस केस में कोर्ट कोई भी चेंजेस नहीं करेगी, इंटरिम इंजंक्शन को वेकेट नहीं करेगी और सेट असाइड नहीं करेगी अनलेस कोर्ट को ये लगता है ऐसा करने से जो है सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंजेस करना चाहिए, हमें उसमें चेंजेस हुआ है या फिर कोर्ट सेटिस्फाइड लगता है कि हाँ ऐसा हम करेंगे, अगर चेंजेस नहीं करेंगे या सेटिस्फाइड नहीं करेंगे और डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो करेंगे तो यह अनड्यू हार्डशिप होगा पार्टी को। तो इन दैट केस कोर्ट चाहे तो चेंज कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है और सेटिस्फाइड कर सकता है अनड्यू सॉरी इंटरिम इंजेक्शन को और टेम्पोररी इंजेक्शन को if regarding provisions are regarding temporary injection under the CPC। so एक बार ब्रीफ कर लेते हैं क्या है टेम्पोररी इंजेक्शन
मेंशन है ऑर्डर 39 रूल 1 to 4 और 5 ऑफ द सीपीसी। रूल 1 से रूल 2 में ग्राउंड किया गया है किस किस ग्राउंड पे आप टेम्पोररी इंजेक्शन ग्रांट करवा सकते हो अगर आप एग्रीड पार्टी हो। हालांकि एक जस्टिस ग्राउंड नहीं है, देयर आर सम अदर ग्राउंड ऑन व्हिच यूजिंग द इनहेरेंट पावर अंडर द सेक्शन 151 कोर्ट में grant the interim injection. We will discuss with the use of a case which is mentioned our case mate। interim injection in hand पावर को ग्रांट यूज करके भी ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। सो रूल 1 में मेंशन है कि कोर्ट चाहे इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है रिलेशन टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट इफ द ग्राउंड है saying that the preventing wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or disposition of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. In that case, court may grant the injunction. Okay. Next है breach of contract के जब होता है तो to perform the breach of contract, to perform the contract, court may impose the injunction against you. So by using rule 1 and rule 2, there are 4 clauses to impose the injunction. सो 2 कैपिटल ए है वो डिसोबीडियंस का बात करता है। अगर इंजेक्शन ग्रांट हो गया है, अगर आप डिसोबे कर रहे हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसने आपने ऑक्यूपाई कर रखा है और वो गलत साबित हो गया, दैट्स व्हाई द इंजेक्शन हैज बीन ग्रांटेड। उस प्रॉपर्टी को 1 साल के लिए अटैच किया जा सकता है और 3 मंथ का अप टू 3 मंथ का सिविल इम्प्रिजमेंट इंप्रिजन भी दिया जा सकता है अगेंस्ट यू। देन अगर सेम थिंग यू आर डूइंग again, then your property will be sold out and the compensation in the form of compensation to the plaintiff, the money will be awarded to the plaintiff. Okay, ये मेंशन है 2 कैपिटल है में 2 क्लॉजेज है, सब रूल 1 एंड सब रूल 2। सब रूल 2 में है कि मैक्सिमम 1 ईयर के लिए किया जा सकता है अटैचमेंट और सेम थिंग यू आर डूइंग देन आपकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट किया जा सकता है और उस प्रोसीड से इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन दिया जा सकता है। ओके, 3 जो है उसमें एक्स पार्टी का बात किया गया है। रूल ए है कि व्हाइल ग्रांटिंग द इंजंक्शन कोर्ट नोटिस भेजेगी आपको कि आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है रिगार्डिंग इंजंक्शन। अगर ऐसा नहीं करती है कोर्ट को लगता है कि डिले हो जाएगी, ठीक है, और रीजनेबल है तो कोर्ट में ग्रांट द इंजंक्शन। इट डिपेंड्स ऑफ द केस ऑफ सर्कमस्टांसेस इन डिस्प्यूट रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोर्ट विदाउट गिविंग नोटिस ग्रांट कर देती है इंजेक्शन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, इन दैट केस एप्लीकेंट यानी कि प्लेंटिफ को कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप एक कॉपी ऑफ इंजेक्शन जो ग्रांट हुआ है और उस विद सम डॉक्यूमेंट लाइक एफिडेविट फाइल इन सपोर्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ प्लेंट एंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन व्हिच द एप्लीकेशन रिलाइज, ठीक है, इस जो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है इसकी कॉपीज आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। 3 कैपिटल ए में बात करता है कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, 30 दिन के अंदर कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा एप्लीकेशन, फाइलिटी देनी पड़ेगी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द इंजेक्शन। ऐसा कोर्ट नहीं कर पाती है, इसी कारण जो रीजनेबल कॉज होगा तो कोर्ट हैव टू और हैज टू रिकॉर्ड द रीजन। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर 4, इसमें रिमेडी का बात होता है डिफेंडेंट का, ठीक है। उसमें दिया गया है डिफेंडेंट को डिससैटिस्फाइड है कि जो इंजेक्शन ग्रांट हुआ है उससे वो डिससैटिस्फाइड है तो कोर्ट के अप्रोच कर सकता है, ठीक है, वैकेशन ऑफ द इंजेक्शन के लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या है, रूल ये है अगर अगर मे बी कि दोनों पार्टी ने हियर करा है, अपना अपना आर्गुमेंट रखा है इन द कोर्ट, रूल ये है कि उस केस में
इंजेक्शन वेकेशन नहीं होगा, अनलेस अनलेस यहाँ पे मेंशन है, अनलेस कोर्ट को ये लगता है एक्सेप्ट वेयर सच डिस्चार्ज वेरिएशन और सेटिंग aside has been necessitated by the changes in the circumstances, unless the court is satisfied that the order has caused the undue hardship to the party। अगर कोर्ट को लगता है कि अगर हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे आफ्टर हियरिंग द पार्टी, तो यह हार्डशिप होगा, हार्डशिप कॉज होगा, अनड्यू हार्डशिप होगा टू द पार्टी। ठीक है, कोर्ट में entertain your argument of dissatisfaction to vacation of the interim injunction। तब जाके आपके फेवर में भी interim injunction को वेकेशन किया जा सकता है, वेकेशन के रूप में चेंज किया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है और डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई प्लेंटिव डिफेंडेंट की रिमेडी। ठीक है सॉरी, एक रूल है 5 जो रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन है। इसका मतलब ये है कि इंटरिम इंजेक्शन अगेंस्ट कॉर्पोरेशन भी इशू किया जा सकता है। उस संदर्भ में ये प्रोविजन क्या कहता है ये देखते हैं। इंजेक्शन टू द कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर, तो मार्जिनल हेड से आपको पता चलता है सॉरी, कि जो इंटरिम इंजेक्शन होता है अगर कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में इशू हुआ है तो वो ऑफिसर पे भी बाइंड होगा। आगे जो ऑर्डर्स हैं 6 to 10 वो बात करता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। In the next video we'll cover the interlocutory order. So come to the case laws। there are 2 cases mentioned in our syllabus। केस में वेरी लीडिंग केस, एक केस में प्रिंसिपल दिया गया है while granting the injunction what should be principle, keep in mind। तो फर्स्ट केस है दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह 1993 का केस है सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है, 4 राउंड लिटिगेशन होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस केस 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन रिलेटिंग टू द केस सब सेम सब्जेक्ट मैटर वेयर हेल्ड between the applicant and respondent। The respondent used all dialectic hilary tactics to the prolonging the litigation। Appellant entered into agreement with the respondent to purchase the house of the respondent। यहाँ पर प्लेंटिव एग्रीमेंट साइन करता है रेस्पोंडेंट का हाउस खरीदने के लिए। ठीक है, फॉर दैट given to him, then the appellant filed a suit for the specific performance which has declared ex parte and sale deed was executed by the court। ठीक है, द फोर्थ राउंड में क्या होता है लिटिगेशन में, रेस्पोंडेंट ऑफ द फॉर द इंटरिम इंजेक्शन फॉर द डिस्पोजिशन सॉट। उसके बाद क्या करता है रेस्पोंडेंट जो है वो इंटरिम इंजेक्शन के लिए सीख करता है कोर्ट में। ऑन अपील हाई कोर्ट ग्रांटेड एन इंटरिम इंजेक्शन। एड इंटरिम इंजेक्शन वो होता है, मान लीजिए आप पार्टी हैं, आप कोर्ट में गए इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट कराने के लिए मेरे अगेंस्ट में, तो while granting the interim injunction जो एप्लीकेशन चल रही होती है उस समय एक एड इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट कर देगी कोर्ट टू द फर्दर प्रोसीडिंग। ठीक है, फाइल एन अपील बिफोर द कोर्ट। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेंट जो होता है, एपीलेंट जो होता है अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी फाइल्ड एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद अपीलेंट एक सुप्रीम कोर्ट बिफोर एक एप्लीकेशन फाइल करता है। इसमें लीगल इशू क्या था, व्हाट प्रिंसिपल कोर्ट शुड फॉलो व्हाइल ग्रांटिंग एड इंटरिम इंजेक्शन और इंटरिम इंजेक्शन और। ठीक है, सेकेंड था वेदर हाई कोर्ट वाज राइट व्हाइल ग्रांटिंग द इंटरिम इंजेक्शन टू द रेस्पोंडेंट। तो जो इसमें है प्रिंसिपल क्या है, फॉर ग्रांटिंग इंजेक्शन इज ए डिस्क्रिशनरी रिमेडी। जो यहाँ बताया गया कि डिस्क्रिशनरी रिमेडी है ऑफ द कोर्ट to the pledgee and such discretion shall be
exercise judicially on sound legal principles. The court has involved following principle. पहला है, इसको ट्रिपल टेस्ट भी बोलते हैं, थ्री पिलर्स भी बोलते हैं फॉर ग्रांटिंग द इंटरडिक्शन। पहला है प्राइमा फेसिया ऑफ द केस। Application must make out of the prime facie of the case in the support of the right claimed by him, that is either defendant or the applicant. Bona fide dispute raised by the appellant must be satisfied by the court, or arguable case for the trial being entitled to the claim relief। तीन चीज ध्यान रखेगी कोर्ट, एक तो प्राइमा फेसिया केस देखेगी और इरिपरेबल लॉस देखेगी और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस। तीन चीजें, पहला है प्राइमा फेसिया केस, कोर्ट को एक प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्राइमा फेसिया केस है और आर्गुएबल केस फॉर ट्रायल है और बोनाफाइड डिस्प्यूट के लिए यह एंटरटेन किया जा रहा है। दूसरा है, ये तीनों ग्राउंड है, प्रिंसिपल्स है, तीनों फॉलो होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ग्रांट होगा। ये नहीं कि कोई एक फॉलो हो रहा है तो ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। इरिपरेबल लॉस और इंजुरी, इसमें दिया गया है कि आफ्टर सर्टिफाइज ऑफ द प्राइमा फेसिया केस, कोर्ट को लगता है इरिपरेबल इंजुरी होगा टू द कंसर्न पार्टी अगर इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है, तो कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस ये देखा जाएगा कि अगर इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट होता है तो प्लेंटिफ को कितना फायदा होगा और डिफेंडेंट को कितना नुकसान होगा, और इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट नहीं होता है तो प्लेंटिफ को कितना लॉस होगा और डिफेंडेंट को कितना फायदा होगा। यही है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस। तो तीनों प्रिंसिपल है मस्ट बी फॉलोड टुगेदर, ठीक है। जो सेकेंड है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइमा फेसिया कॉज case alone does not entitle the plaintiff or applicant for a temporary injunction. The, the applicant must further satisfy that he will suffer injury, that is irreparable injury, if the injunction is not granted. Then court may entertain your plaint. Next है balance of inconvenience or convenience. Balance of convenience must be in favor of the appellant, okay, applicant. Then in the Gujarat Bottling Company Limited versus Coca-Cola 1995 Supreme Court held that injection is an equitable remedy. The applicant must satisfy the court that he acted in good faith with due care and caution and he was not at fault। इस केस में बताया गया कि एप्लीकेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कोर्ट को जो उसका एक्ट है गुड फेथ में है और कोई फॉल्ट नहीं है एप्लीकेंट का, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, और ये जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये मैटर ऑफ रिमेडी है, ठीक है। इस केस में दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह में तीन प्रिंसिपल दिया गया था। पहला है प्राइमा फेसिया केस, दूसरा है इरिपरेबल इंजुरी एंड थर्ड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस। लेट्स मूव टू द अनदर केस, ठीक है। एक और केस रिलेटेड टू दिस वन, मर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया था फॉलोइंग फैक्टर व्हिच इज शुड बी कंसीडर्ड बिफोर ग्रांटिंग एक्स पार्टे। जो सेक्शन 3 में ऑर्डर 39 रूल 3 में मेंशन था, उसे रिलेटेड कौन कौन सा फैक्टर है और वो कीप इन माइंड किया जाएगा ग्रांटिंग द एक्स पार्टे इंजंक्शन। वो है विद द 3 पिलर, ठीक है। जो 3 ग्राउंड बताया गया था, दैट इज प्राइमा फेसिया केस और इरिपरेबल इंजुरी और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। इसके साथ साथ whether the refusal of the ex parte injunction would involve greater injustice than the grant of it। क्या ग्रेटर इंजस्टिस होगा अगर ग्रांट नहीं करते हैं,
whether the irreparable injury will ensure to the plaintiff, whether the plaintiff is applying for the injunction इन एटमोस्ट गुड फेथ में किया है कि नहीं किया है, ट्रिपल टेस्ट जो है वो भी देखा जाएगा, और एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड विद इन 30 डेज के अंदर में डिसाइड भी किया जाएगा। ये था एक्सपर्ट इंजंक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या फैक्टर है कि देखा जाना चाहिए वाली ग्रांट के एक्सपर्ट इंजेक्शन। यह डिसाइड हुआ था मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरी क्रूशियल केस व्हिच इज रिलेटेड टू द इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर यूज करके क्या कोर्ट ग्रांट कर सकती है इंजेक्शन? ये भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, तो उसको देखते हैं। सॉरी, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल 1962 और 1963 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस रघुवर दयाल जस्टिस डिसाइड किए थे। ठीक है, फैक्ट क्या था? द एप्लीकेंट एंड द रेस्पोंडेंट इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, उसमें एग्रीमेंट में इंटर हुआ था फॉर द परचेज ऑफ द रेस्पोंडेंट हाउस। इसमें पार्टनरशिप में एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंटर हुआ है। ठीक है, प्लेंटिफ एट इंटोर फॉर द वर्किंग कोल माइंस, द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड बाय ए डीड ऑफ द डिसोल्यूशन। उसके बाद क्या होता है? द प्लेंटिफ फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेयर in the capital assets of the partnership firm. Therefore, respondent filed a petition under Section 34 of Arbitration Act in Unsol Court, praying for a stay of suit in view of the arbitration agreement. This application was rejected. Thereafter, defendant also filed a counter suit at the indoor against the plaintiff for the recovery of the money. उसके बाद क्या आता है? इशू था इसमें whether the court could exercise its inherent power under section 151 of Code of Civil Procedure 1908 when there were specific provision, that is section 94 and order 39 in CPC for the issue of the injunction. Decision क्या आता है? The grounds given under Rule 1 or Rule 2 to the Rule Order 39 of CPC for granting injunction is not exhaustive. इसी केस में बताया गया था जो ग्राउंड दिया गया है Rule 1 और Rule 2 of the Order 39 वो exhaustive नहीं है. There are many other grounds for the granting injunction too. Supreme Court held that where a court is of the opinion that the inherent of the justice so requires, it has inherent power to the grant injunction under the section 151 CPC 1908, even the grounds that are not mentioned in order 39 rule 1 और 2। इसमें मालूम ये चलता है कि जो रूल 1 और रूल 2 टू द ऑर्डर 39 में जो ग्राउंड दिया गया है जिस बेसिस पे टेम्पररी ग्रांट कर सकते हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है फॉर ग्रांटिंग इंजेक्शन। सो बाय 2 केसेस विल कवर द टॉपिक इंजेक्शन। ठीक है, पहला केस था जो प्रिंसिपल दिया गया था दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह, उसमें 3 प्रिंसिपल थे। पैरामेरा फेसिया केस इरिपरेबल इंजरी एंड बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस। दूसरा केस था मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल 1962 सुप्रीम कोर्ट, इसमें इनहेरेंट पावर का यूज करके भी ग्रांट किया जा सकता है इंजेक्शन। सो बाय दिस वीडियो विल कवर temporary injection. In next video, we will cover introductory order. He mentioned Order 39, Rule 6 to 10 of the Code of Civil Procedure. Thank you so much for watching this video. I hope this video will give you the brief idea of injection, the provision of injection, on which ground a party can take by the court or court will grant the injection
what is the provision, where the provision mentioned, and also the provision mentioned in specific Relief Act 1963 and also in the CPC, and the two very crucial case has been discussed in this video. So thank you so much for watching this video. Please subscribe and like if you wish to like and subscribe and also share. Thank you so much and all the best for your exam. Our exam will be conducted in January 2023. We all know that the cold weather is going on, so keep on eye your health also with your syllabus. So thank you so much. Bye bye. All the best for your exam.